Welcome to this lecture. So today we are going to start Thomson's models. What were the earlier atomic models that were presented by the different scientists? So first model was given by Mr. John Dalton, but his atomic model was not that much satisfied for many conditions. Okay. So when after the discovery of subatomic particles like electrons, that is positive charge particles and negative charge particles, so which break the which put the question marks on the Dalton's atomic model, because Dalton said that the atoms is just totally solid spheres. It is just round like a spherical ball, like hard ball. We can say that atoms looks like a solid ball. Okay, so but which cannot be indestructible, which is indestructible. But after the discovery of electrons and proton that we have seen it, these two were the fundamental particles, then its concept of the atomic models was totally changed. Means these particles, atoms consist of two charges. One is positive charges, one is negative charges. Okay, so which was presented by the Thomsons in the form of he gave a statement in the form of plum pudding model, or the second model was the watermelon model. So we'll study here watermelon model, how he presented the atoms in the form of watermelon model. So what was the concept basically behind it? So you know what is watermelon. So you just take watermelon, cut this watermelon into half with the knife. Okay, so on cutting half we will see the inner part. The inner part is just a red color. This whole part is a red color. This mass is there. Inside this black seeds are there. If you observe carefully, the external part is some, this part will be some dark. Okay, this part will be dark. Okay, and inside will be red part. This is what watermelon looks like inside the red part, and this black part is a seed. ये सीड की तरह दिखता है, ये वाला जो ब्लैक पार्ट है सीड दिखता है. तो इस ब्लैक पार्ट को मिस्टर थॉमसन ने कहा था कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है. द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन दिस फ्लेसी मास, रेड फ्लेसी मास. जो हमारा रेड पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स में इम्बेडेड रहता है ये फ्लेसी मास के अंदर में. सो व्हाट ही सेड दैट this whole is the red positive charge, electrons are the black seeds. So according to him, this positive charge is spread over a space and electrons are embedded. So यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ पर ये सारा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर embedded है, ये इसी में ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं. And these are positive charges are, second point was the uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. और सभी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में ही है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हमारा है वो दिस इज स्टेबल इन नेचर. वो स्टेबल होता है क्योंकि दोनों चार्जेस आपस में बैलेंस रहते हैं, इक्वल रहते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल नेचर. ये दूसरा पॉइंट था कि इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली बैलेंस्ड है, और ये एटम्स का हमारा स्ट्रक्चर्स है. तो इस स्ट्रक्चर्स को उसने 1904 में सभी साइंटिस्टों के बीच में, एक साइंटिस्ट कम्युनिटी के बीच में, इंटरनेशनल फोरम में उसने ये प्रेजेंट किया था कि दिस इज़ द व्हाट एटम्स लुक्स लाइक. इसके अंदर में ये है, ये पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और इट लुक्स लाइक ए वाटरमेलन, और इट लुक्स लाइक ए प्लम पुडिंग. मतलब एक पुडिंग है जिसमें प्लम्स को एम्बेड किया हुआ है. दी आर द प्लम्स, तो उसको प्लम पुडिंग मेल करते हैं. प्लम पुडिंग के अंदर में एम्बेडेड है. तो कुछ साइंटिस्टों ने इसके स्टेबिलिटी के बारे में पूछा कि हाउ दिस एटम इज स्टेबल. द स्टेबल इज वेरी क्लियर. चूँकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट एंड इक्वल है, तो उसके अंदर में भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा. तो देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे यहाँ पर, और साथ में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज है, वो आपस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेंगे. सो देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अट्रैक्शंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो ये सेंटर का स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव चार्ज का आपस में रिपल्सन्स और अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा एटम, द होल एटम इज ए स्टेबल इन नेचर. ये एक न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रॉन इसमें से जो ये नेगेटिव चार्ज वो ऑटोमेटिक निकलते हैं, जैसे रबिंग से निकल गए. जैसे इबनाइट टॉट में हमने देखा था कि वेरी रब्ड इन ए सिल्क फर इट केम आउट. सो वहाँ से निकल जाते हैं ऐसे करके.
बट लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट वेर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जजमेंट ऑफ दिस थॉमसन। थॉमसन के इस जजमेंट से बहुत सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक नहीं लग रहा था ये मॉडल। ओके 1906 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया, नॉट फॉर दिस प्रपोजल ऑफ दिस एटम्स, उनको दिया गया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स वेर, हाउ दिस गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और साथ ही साथ काफ़ी मोटिवेशन के साथ में उसने ये मॉडल एटम्स के बारे में मॉडल प्रेजेंट किया था, क्योंकि ये थॉमसन उस टाइम के बहुत बड़े सीनियर साइंटिस्ट, वेरी बिग साइंटिस्ट। सो उनके बात को किसी ने नेगलेक्ट तो नहीं किया, लेकिन सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन था, एक हाइपोथेसिस था जिसका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था। देयर वाज नो प्रूफ, नो एक्सपेरिमेंट्स, सो दे वर टोटली अनसेटिस्फाइड। 1890 में एक फिनोमेना हुआ जिसे कहते हैं हम लोग बाल्मर्स फार्मूला। बाल्मर्स ने एक ऑब्जर्वेशन किया था, क्या था ऑब्जर्वेशन कि उसने हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में पास कराया था। तो पास कराने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब से डिफरेंट तरह के कलर्स देते हैं, ग्रीन, रेड, वायलेट, इस तरह के कलर्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। 1890 में, ठीक है, ये थॉमसन मॉडल की जो प्रेजेंटेशन है 1904 में। तो ये कैथोड के ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से हाइड्रोजन गैस अलग अलग तरह के कलर्स दे रहे हैं। ये कलर्स क्यों हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इस कलर्स के निकलने में, तो ये चीज़ बाल्मर को ही पता नहीं थी। तो इस मॉडल को अगर हम देखें, थॉमसन मॉडल को देखें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर में ही है, लेकिन जो बाल्मर्स का जो कंसेप्ट था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट था कि हाइड्रोजन कैसे स्पेक्ट्रम दे रहा है, अलग अलग कलर्स दे रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में, ये इस मॉडल को देखने से हम कुछ एक्सप्लेन नहीं होता, समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था थॉमसन के लिए, तो इस थॉमसन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सेकेंड पॉइंट था कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो अल्फा पार्टिकल को जब गोल्ड फॉइल में जब उसको प्रोजेक्ट किया गया तो व्हाट वाज दे वर डिफ्लेक्टेड। तो ये भी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो कि थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया, फेल कर दिया, फेल को डिसअप्रूव कर दिया। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि थॉमसन का मॉडल जो उसने कहा था कि रेड पार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड। तो ये दो एक्सपेरिमेंट इसने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, जबकि अल्फा स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल से वाटर मिरर मॉडल की धज्जियाँ ही उड़ गई। तो ये टोटली इसको डिसअप्रूव कर दिया गया कि ये मॉडल बिल्कुल सही नहीं है। अब सारे साइंटिस्ट जो मैक्सिमम थे वो अल्फा पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट के ऊपर में लग गए, जिसमें कि अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ने थॉमसन मॉडल की धज्जियाँ उड़ा दी।